In this lecture, we will discuss the rules relating to falling tone. I have already delivered my one lecture on intonation, in which I discussed the meaning of intonation, importance of intonation, function of intonation, tonic word, tonic syllable, and types of tone. So in this lecture, we are talking about rules relating to falling tone, means when to speak a sentence with the falling tone. So let's start this topic, and that is falling tone, rules of falling tone. So the first rule that we are going to talk about is that falling tone is used with complete and definite statement. If you want to speak a complete and definite statement in your real life, so you will have to speak that sentence with falling tone. Let's take one example. Now, if, for example, you want to speak this sentence. So in my previous video on intonation, I also explained you that in a sentence, uh, besides a tone, we also use stress. And I discussed the rules of stress, that the stress falls on the content words. Content words are noun, adjective, verbs, adverbs. Similarly, contracted forms, didn't, doesn't. So they are normally stressed. And in my previous lecture, I also told you that in a sentence, there is a tonic word. Tonic word means the most powerful word. And in that most powerful word, there's a tonic syllable. Now, you must be thinking that how can we identify the tonic word, most powerful word? So for your convenience, I want to tell you the most powerful word or the tonic word is 99% the last content words. So here the last content word is book because it is a noun. So this word is a tonic word. So you must remember, in a sentence, tone falls on the tonic word. We will have to identify the tonic word. And in tonic word, we will have to identify a tonic syllable. And tonic word will be 99% last content word, means noun, adjectives, verbs, and adverbs. And we also use stress where on content words, noun, adjective, verbs, adverbs, and contracted form. And we don't use stress on pronoun, helping verb, article, preposition, conjunctions. So just take this sentence. How will you speak this sentence in your real life? You will speak this sentence with falling tone. Why? Because it is a complete statement, it is a complete sentence and a definite sentence. How will you pronounce this word? Is writing a book. Now, when I have pronounced this word book, so my tone starts falling down. मेरी जो आवाज थी वो नीचे गिरना शुरू होगी. आपने नोट किया होगा. Is writing a book. So now here on book we will use falling tone. And what is the symbol of falling tone? It's this one, slanting line. This is the symbol of falling tone. Clear? And we have used falling tone here, and we will use stress also. And where? On the verb write. And stress, this is the symbol of stress. So he is writing a book. So that is one example. Take one more example. Again, this statement is complete and definite. Now, again, in this word, the tonic word is the last word. There is another criteria also for the tonic word. कि आप tonic word को हटा के देख लीजिए. If the meaning of a sentence is affected, then that is a tonic word. For example, इसमें देखिए, he is writing a book. He is writing what? तो हमें चाहिए कि क्या लिख रहा है, एक बुक लिख रहा है. और मैंने आपको एक पहला फॉर्मूला बताया that 99% आपका tonic word क्या होगा? The last content word means you can say that it may be noun, verbs,
adjective, adverbs. तो इसमें देखिए जो हमारा सॉन्ग है इस पे क्या लगेगी, वी विल यूज द फॉलिंग टोन हियर, इस पे फॉलिंग टोन लगाएंगे. नाउ राधा इज ए नाउन, तो इस पे हमारी क्या लगेगी, स्ट्रेस. Singing is a verb, and in singing the main verb is sing, so here we will use the stress. तो ये यूज करेंगे, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग. कैसे बोलेंगे, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग. हमारी जो टोन है वो डाउन आनी चाहिए. And another important rule of falling tone is that falling tone is used with matter of fact question. What is the meaning of matter of fact question? Means a question in which there's no emotion. Emotion involved na ho. That is called matter of fact question. Just take one example. Now, this is a question. What are you eating? हम क्या बोलते हैं? What are you eating? This is only a general question. There's no emotion involved here. So it is a matter of fact question. So we will use stress with what? With helping verb. Helping verb is not stressed. Pronoun is not stressed. And here the tonic word is eating. And in eating, the main important verb is eat. Ing is a suffix. And you know that prefix and suffixes, they are never stressed. I have already recorded 3 or 4 videos on stress, so you can watch those videos also on my app Oxbridge English. So here falling tone will be on eat. Just take one more example. Where is he going? Where is he going? Going में हमारी टोन क्या होती है, डाउन होना शुरू हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज ही गोइंग. तो अगेन इट इज ए मैटर ऑफ फैक्ट क्वेश्चन. देयर आर नो इमोशन. इसमें कोई हमारी इमोशन नहीं है. हम सीधा ही पूछ रहे हैं, जनरली पूछ रहे हैं कि आप कि वो कहाँ जा रहा है. देयर विल बी स्ट्रेस ऑन WH वर्ड. इज हेल्पिंग वर्ब है, इस पे नहीं लगेगी. ही प्रोनाउन है, नहीं लगेगी. अगेन अवर टॉनिक वर्ड इज गोइंग. एंड इन गोइंग मेन वर्ड इज गो. ing is suffix. Suffix जानते हो, जो किसी वर्ड के पीछे लगते हैं उन्हें suffix कहते हैं. So the tone, falling tone will fall on the main word, and main syllable is go, because ing suffix and prefixes are never stressed. So these are 2 rules, and I think you are able to understand these 2 rules with complete and definite statement with matter of fact question. Now third is with strong command. If you want to order a person in your real life, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो हम बोलते सेंटेंस कैसे शुरू करते हैं, जोर से, और सेंटेंस के एंड आते हुए हमारी आवाज डाउन हो जाती है. सो वी यूज फॉलिंग टोन. फॉर एग्जांपल, आपने किसी को ऑर्डर दिया, कमांड दिया, दरवाजा खोलो, तो आप क्या कहते हो, ओपन द डोर. अब ओपन तो आपने जोर से बोला, डोर तक आते हुए आपकी आवाज गिर चुकी है. आप रियल लाइफ में इसको महसूस करके देखना, आप ऐसे ही बोलते हो. हम क्या कहते हैं, ओपन द डोर. अब ओपन से आया, डो में आते हुए हमारी आवाज डाउन हो गई. तो अगेन इसमें जो हमारा टॉनिक वर्ड है वो डोर है, तो इस पे हमारी फॉलिंग टोन लग जाएगी. ओपन हमारा एक वर्ब है, इसके ऊपर क्या लग जाएगी, स्ट्रेस. तो आपको स्ट्रेस भी लगानी है और साथ साथ फॉलिंग टोन भी लगानी है. तो फॉलिंग टोन हमेशा टॉनिक वर्ड पे लगती है, टॉनिक सिलेबल पे लगती है. टॉनिक वर्ड क्या होता है, 99% लास्ट कंटेंट वर्ड होता है. कंटेंट वर्ड मींस वो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकती है, एडवर्ब हो सकती है. मोस्ट ऑफ द केसेस में नाउन ही होता है. नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल. आप किसी को फिर कमांड दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो कि 1 गिलास पानी लाओ, तो आप क्या कहते हो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर. अब देखो वाटर तक आते हुए हमारी आवाज डाउन हो चुकी है. हमने सेंटेंस जोर से शुरू करते हैं क्योंकि ऑर्डर दे रहे हैं. क्या कहते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर. वाटर तक आते हुए हमारी आवाज गिर जाती है, इसे कहते हैं फॉलिंग टोन. अगेन इसमें हमारा जो टॉनिक वर्ड है वो वाटर है, ठीक है. और वाटर में हमारी जो फॉलिंग टोन कहाँ लगेगी, बिगिनिंग में लगेगी. ब्रिंग हमारी वर्ब है, इस पे स्ट्रेस लगेगा. ग्लास हमारा नाउन है, तो इस पे भी स्ट्रेस लगेगा. आई थिंक बहुत इजी है इंटोनेशन. आपको लग रहा होगा, देखो बिल्कुल इजी है, नो प्रॉब्लम विद इंटोनेशन. बस आपको रूल ध्यान रखने हैं.
Next, with strong exclamation. Exclamation, I think you know, it is used to show sudden change in feelings. जब हमारी फीलिंग्स में एकदम अचानक चेंज होता है, हम हैप्पी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, that is called exclamation. So with strong exclamatory sentences we use falling tone. Just take one example. मौसम बड़ा अच्छा हो तो आपके मुंह से एकदम क्या निकलता है? आप हायर टोन से शुरू करते हो सेंटेंस से, क्या बोलते हो? व्हाट अ फाइन वेदर. व्हाट आपने स्ट्रेस देके बोला, वेदर तक आते हुए आपकी टोन गिर जाती है. यही बोलते हो ना, एकदम क्या निकलता मुंह से? व्हाट अ फाइन वेदर. तो अगेन यहां पर हमारा जो टॉनिक वर्ड है वो वेदर है. यहां पर शुरुआत में क्या लगेगी? हमारी फॉलिंग टोन. व्हाट पे हमारी स्ट्रेस लगेगी. फाइन हमारा एडजेक्टिव है, वेदर की विशेषता बता रहा है. एडजेक्टिव तो आपको पता ही होगा. एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है. फाइन वेदर की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेस लग जाएगा. एक और एग्जांपल देखिए. गुड हेवंस. क्या बोलते हैं? गुड हेवंस. गुड को जोर से बोलते हैं, हेवंस में आते हुए हमारी आवाज डाउन हो जाती है. तो इसमें वर्ड ही दो हैं. तो हेवंस तो हमारा लास्ट जो हमारा टॉनिक वर्ड है, इस पे फॉलिंग टोन, और गुड जो एडजेक्टिव है उस पे स्ट्रेस. इंटोनेशन इज वेरी इजी. देखो कितनी आसान है. वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल्स ऑफ फॉलिंग टोन. हमने रियल लाइफ में इन सेंटेंसेस को ऐसे ही बोलना है, आपको सीखना है. सिर्फ इसको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सीखना. वी आर टू लर्न दिस टॉपिक फ्रॉम प्रैक्टिकल और रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू. हमें पता होना चाहिए कि जब हम रियल लाइफ में कमांड देंगे तो कैसे बोलेंगे, फॉलिंग टोन के साथ. एक्सक्लेमेशन शो करेंगे तो फॉलिंग टोन के साथ. अगर हम मैटर ऑफ फैक्ट क्वेश्चन बोलेंगे तो फॉलिंग टोन के साथ. कंप्लीट और डेफिनेट स्टेटमेंट बोलेंगे तो फॉलिंग टोन के साथ बोलना है. नेक्स्ट रूल इज विद टैग क्वेश्चन, इफ ईदर द स्टेटमेंट और टैग. अब हमने रियल लाइफ में टैग क्वेश्चन भी यूज करते हैं. अब ये टैग क्वेश्चन क्या होता है? टैग क्वेश्चन के कई फंक्शंस होते हैं. पहला ये फंक्शन ये होता है कि स्पीकर को हमारी बात से एग्री करवाना. ठीक है, जैसे हमने अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि आजकल तुम बड़ा टीवी देख रहे हो. अब हम इस बात से एग्री करवाना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं? नहीं देख रहे. हिंदी में एग्जाम्पल दे रहा हूं, इंग्लिश का मैं एग्जाम्पल देता हूं. दूसरा टैग क्वेश्चन किस लिए लगता है? स्पीकर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, कि हम कोई बात कर रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि जो सुनने वाला हमारी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा. हम टैग क्वेश्चन लगा देते हैं. तो टैग क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन आता है. दो ही चीजें ध्यान रखनी है. और टैग क्वेश्चन का एक रूल होता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनता है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव बनता है. तो ध्यान रखना, अगर आपको स्टेटमेंट में नोट मिलता है या टैग क्वेश्चन में नोट मिलता है तो आपने फॉलिंग टोन लगानी है. जस्ट टेक वन एग्जांपल. हमने एक सेंटेंस बोला, ही इज राइटिंग अ लेटर. लेटर में हमारी आवाज डाउन आ रही है. ये एक इज राइटिंग अ लेटर, ये एक कंप्लीट एंड डेफिनेट स्टेटमेंट है, और हमने रूल किया था कि कंप्लीट एंड डेफिनेट स्टेटमेंट के साथ फॉलिंग टोन लगती है. देखो अब हमने टैग क्वेश्चन बना दिया. मैंने बताया था टैग क्वेश्चन में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन लगता है. हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या दी हुई थी? इज. सेंटेंस क्या था? पॉजिटिव, ही इज राइटिंग अ लेटर. तो टैग क्वेश्चन क्या बना है जी? नेगेटिव बना, इजंट, और हमने ही प्रोनाउन वही यूज कर लिया. तो ये टैग क्वेश्चन आपने ग्रामर में सीखे होंगे. टैग क्वेश्चन में दो ही चीजें यूज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन. और आपको रूल याद रख रहे हैं कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगा. हमने रूल क्या डिस्कस किया कि अगर टैग क्वेश्चन के साथ भी फॉलिंग टोन लगेगी अगर स्टेटमेंट में या टैग क्वेश्चन में नोट दिया हो. अब ये हमारी स्टेटमेंट है, हिज राइटिंग अ लेटर. ये हमारी कंप्लीट एंड डेफिनेट स्टेटमेंट है, और हमारा पहला रूल यही था कि विद कंप्लीट एंड डेफिनेट स्टेटमेंट वी यूज फॉलिंग टोन. और इज राइटिंग अ लेटर, इसमें टॉनिक वर्ड कौन सा है? लेटर है. तो यहां पर
मैंने आपको बताया था लास्ट कंटेंट वर्ड होता है, फॉलोइंग टोन लग जाएगा। ही प्रोनाउन पे स्ट्रेस नहीं लगती, इस पे नहीं लगती, आर्टिकल पे नहीं लगती। स्ट्रेस किस पे लगती है? मेन किस पे? नाउन पे, वर्ब पे, एडजेक्टिव पे, एडवर्ब पे। राइट हमारी वर्ब है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगी? स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं टैग क्वेश्चन की। मैंने अभी आपको बताया था कि टैग क्वेश्चन के साथ भी फॉलोइंग टोन लगेगी अगर आपको जातो स्टेटमेंट में या टैग क्वेश्चन में नोट मिल जाता। तो हमें नोट किस में मिल गया? टैग क्वेश्चन में। तो हमारी जो टोन लगेगी वो कहां लगेगी? इजेंट पे लगेगी, क्योंकि प्रनाउन पे कभी टोन नहीं लगती। इजेंट हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है। तो इसको कैसे बोलेंगे? ही इज राइटिंग ए लेटर, इजेंट ही, इजेंट ही। ठीक है, तो ये हमारा टैग क्वेश्चन वाला है। एक और एग्जांपल देखिए, they have taken food, haven't they? देखो दे तक आते आते हमारी टोन डाउन हो जाती है। ठीक है, अब अगेन इसमें देखिए ये हमारी एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, डेफिनेट स्टेटमेंट है। दे प्रनाउन है, कुछ नहीं लगेगा। हैव हेल्पिंग वर्ब है, कुछ नहीं लगेगा। इसमें हमारा टॉनिक वर्ड कौन सा? फूड है। लास्ट कंटेंट वर्ड होता है, इस पे हम फॉलोइंग टोन लगा देंगे। टेकन हमारी मेन वर्ब है, और वर्ब के साथ क्या लगता है? स्ट्रेस लगता है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, और ये अवेलेबल है मेरी ऐप ऑक्सब्रिज इंग्लिश पे, जिसे आप डाउनलोड करके आप लिंग्विस्टिक, ग्रामर, राइटिंग स्किल, स्पोकन इंग्लिश, लिटरेचर से रिलेटेड कुछ भी वीडियो देख सकते हो। फिर हमारा यहाँ पे नोट आ गया टैग क्वेश्चन में, तो यहाँ भी क्या लग जाएगी? फॉलोइंग टोन लग जाएगी। क्लियर? दैट्स अनदर रूल। नेक्स्ट इज विद प्रिंसिपल क्लॉज। हम आपने ग्रामर में क्लोज तो किए होंगे। प्रिंसिपल क्लोज इज आल्सो कॉल्ड मेन क्लोज। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्लोजेस पे मैंने नियर अबाउट 5 वीडियोस अपलोड की हुई हैं मेरी ऐप पे, एंड आई हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक इन डिटेल। अगर आप वो 5 वीडियोस देखोगे तो आपको कभी भी लाइफ में क्लोज से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट क्लोज इन डिटेल इन दिस लेक्चर। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा कि प्रिंसिपल क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सेंटेंस देखिए, he'll pass, he'll pass, he'll pass if he works hard। देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। he'll pass if he works hard। अब इसमें दो क्लोज हैं। क्लोज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। क्लोज क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है, एक वर्ब भी होती है। और सेंटेंस भी क्या होता है आपको पता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। तो सेंटेंस और क्लोज की सेम डेफिनेशन होती है, लेकिन डिफरेंस ये होता है क्लोज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, कि क्लोज एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। एक सेंटेंस में 2 क्लोज भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 50 क्लोज भी हो सकते हैं। जैसे ये हमारा सिंगल सेंटेंस है, इसमें 2 क्लोज हैं। पहला क्लोज कौन सा है? हिल पास, क्योंकि ही सब्जेक्ट आ गया, पास वर्ब आ गई, ये पहला क्लोज है। दूसरा इसमें क्लोज कौन सा है? ही वर्क्स हार्ड। ये पास नहीं है, ये हार्ड है। यहाँ पे द वर्ड इज हेयर हार्ड। ठीक है, आप इसको लिख लेना, थोड़ा सा टाइप करने में गलती होगी। वर्ड इज हार्ड हेयर। ओके, तो 2 क्लोज हैं, हिल पास इफ ही वर्क्स हार्ड। तो इसमें एक मेन क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है कि सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा किससे शुरू होता है? कंजक्शन से। इसमें कंजक्शन कौन सा? इफ। तो कंजक्शन के बाद जो भी क्लोज आएगा वो हमारा क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लोज आएगा। तो इफ ही वर्क्स हार्ड, इसमें जो ही वर्क्स हार्ड जो है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा प्रिंसिपल या मेन क्लोज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो याद रखिए, कंजक्शंस के बाद जो भी क्लोज आएगा वो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, और कंजक्शन से पहले जो क्लोज आएगा वो मेन क्लोज आएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें मेन क्लोज कौन सा है? हिल पास। तो इसमें हमारा जो टॉनिक वर्ड है वो कौन सा? पास है, पास वर्ब है। मैंने आपको बताया था लास्ट वर्ड होता है
जो नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। तो ये हमारा पास क्या है जी, टॉनिक है, इस पे क्या लगा देंगे, फॉलिंग टोन लगा देंगे। इज इट क्लियर? ही हमारा एक प्रोनाउन है, उस पे नहीं लगेगा। विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उस पे कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ क्या लगती है, फॉलिंग टोन। वैसे मैं आपको एक रूल और बता देता हूं, जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है ना, उसके साथ राइजिंग टोन लगती है। वैसे ये मैं रूल डिस्कस करना था मैंने राइजिंग टोन वाले लेक्चर में, लेकिन आपको बता देता हूं क्योंकि ये साथ साथ आए हैं। तो आपको याद रखना है, मेन क्लॉज के साथ फॉलिंग टोन लगती है और सबॉर्डिनेट क्लॉज के साथ राइजिंग टोन लगती है। तो राइजिंग टोन भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इसमें मेन वर्ड कौन सा है, हार्ड। हार्ड हमारा एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो हमारा लास्ट कंटेंट वर्ड आ गया। और राइजिंग टोन क्या रखती है, वो भी स्लैंटिंग होती है लेकिन वो नीचे लगती है। डिफरेंस ये होता है, फॉलिंग टोन टॉनिक वर्ड के ऊपर लगती है, राइजिंग टोन उस टॉनिक वर्ड के नीचे लगती है, वो भी स्लैंटिंग होती है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, वर्ब्स। तो उस पर हमारा क्या लग जाएगा, स्ट्रेस लग जाएगा। तो मैंने दोनों रूल आपके साथ डिस्कस कर दिए कि अगर एक सेंटेंस में एक मेन क्लोज और एक सबॉर्डिनेट क्लोज दे रखा हो, तो मेन क्लोज के साथ फॉलिंग टोन लगेगी और सबॉर्डिनेट क्लोज के साथ राइजिंग टोन लगेगी। एक और एग्जांपल ले लीजिए, द गेस्ट्स हैड लेफ्ट, द गेस्ट्स हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड होम। देखो होम में हमारी आवाज ऊपर जा रही है। द गेस्ट्स हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड होम। तो या आफ्टर, तो आफ्टर के बाद हमारा सबॉर्डिनेट क्लोज है, मेन क्लोज के साथ राइजिंग टोन लगती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, लेफ्ट। तो लेफ्ट के साथ हमने फॉलिंग टोन लगाई। गेस्ट हमारा नाउन है, इसके साथ हमने स्ट्रेस लगाया। और मैंने बताया था सबॉर्डिनेट के साथ राइजिंग टोन लगती है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा, होम। तो होम में के साथ हमने राइजिंग टोन लगाई। और रीच हमारी वर्ब है, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, सॉरी, इसके साथ हमने लगा दिया, स्ट्रेस लगा दिया। इज इट क्लियर? तो ये रूल आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है विद इनविटेशन। अगर आप किसी पर्सन को इनवाइट करना चाहते हो, तो पर्सन इज इनवाइटेड विद फॉलोइंग टोन। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को चाय के लिए बुला रहे हैं, एक कप चाय के लिए, तो हम क्या कहते हैं, कम ओवर फॉर अ कप ऑफ टी। देखो टी पे आते हुए हमारी आवाज डाउन होगी। अगर आज के बाद आपने रियल लाइफ में किसी को भी इनवाइट करना है, सेंटेंस बोलना है, तो आप फॉलोइंग टोन के साथ बोलोगे। क्या बोलेंगे, कम ओवर फॉर अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा हमारा लास्ट कंटेंट वर्ड कौन सा, टी है। तो हम टी पे तो क्या लगा देंगे, फॉलिंग टोन लगा देंगे। बाकी अब स्ट्रेस लगाएंगे, कप हमारा नाउन है, इस पे स्ट्रेस लगा दिया। कम हमारी वर्ब है, इस पे स्ट्रेस लगा दिया। ठीक है, एक और देखिए, फिर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते। हमने क्या कहा, वाई डोंट यू कम एंड डाइन विद अस। तुम आते क्यों नहीं और हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते। तो इसमें देखिए, इसमें अब हमारे दो सेंटेंसेस हैं, एक तो है व्हाई डोंट यू कम और सेकंड है डाइन विद अस। वैसे ओवरऑल ये हमारा जो है इनविटेशन है। तो इसमें हमारा जो लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है डाइन, क्योंकि विद प्रेपोजिशन है उसके साथ नहीं लगता। अस हमारा प्रोनाउन है उसके साथ नहीं लगता। यहां क्या लग जाएगी, फॉलिंग टॉप। क्लियर? वाई के साथ हमारी क्या लगेगी, स्ट्रेस। डोंट हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ स्ट्रेस लगती है, मैंने बताया है मेरे लेक्चर में इंटोनेशन वाले में। कम वर्ब आ गई फिर स्ट्रेस लग जाएगी। इज इट क्लियर? तो आज के बाद आपने जब भी किसी को इनवाइट करना है, तो यू आर टू इनवाइट दैट पर्सन विद फॉलोइंग टोन। नेक्स्ट रूल इज विद शॉर्ट यस नो टाइप क्वेश्चन वी यूज फॉलोइंग टोन। अब यस नो टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, दे आर वेरी सिंपल। यस नो टाइप क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस विच स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस पूछता हूँ, डू यू लाइक आइसक्रीम। अब ये किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब डू से। इसका जवाब आप क्या दोगे, पसंद है तो यस कहोगे, पसंद नहीं है तो नो। इन्हें कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन।
So yes no type question, they always starts with helping verb. वैसे तो yes no type question के साथ rising tone लगती है, but when yes no type questions are short, ठीक है, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा डू यू लाइक आइसक्रीम, आपने क्या कहा yes I do, ये छोटा क्वेश्चन है. तो विद शॉर्ट yes no टाइप क्वेश्चन यूज्ड एज रिस्पॉन्सेस, जब आप जवाब देते हो छोटे क्वेश्चंस, उनके साथ फॉलिंग टोन लगती है. अदरवाइज yes no टाइप क्वेश्चन के साथ राइजिंग टोन लगती है. जैसे एक सेंटेंस आया, ये ब्रैकेट में है, आपने सिर्फ हैजी को ध्यान रखना है. हमने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, ही हैज प्लेड, ये हमारी एक कौन सी स्टेटमेंट है, कंप्लीट एंड डेफिनेट स्टेटमेंट है. इसके साथ वैसे फॉलिंग टोन लगता है क्योंकि ये ब्रैकेट में दी हुई है, हमारे से एग्जाम में नहीं पूछा हुआ. हम सिर्फ किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, शॉर्ट यस नो टाइप क्वेश्चन से, क्योंकि ये हैज हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है. किसी ने कहा, हमसे कहा ही इज प्लेड रियली वेल, ठीक है, हमने कहा हैज ही, हमने ये कहा ना हैज ही को हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, ही तक तो आते हुए हमारी आवाज डाउन हो जानी चाहिए, हम क्या कहेंगे हैज ही. तो ये हमारा एक शॉर्ट यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें फॉलिंग टोन लगेगी. और फॉलिंग टोन किस पे लगती है, वर्ब पे. नो प्रॉब्लम, ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि प्रोनाउन पे तो कभी लगती नहीं है. नेक्स्ट देखिए, एक और कंप्लीट एंड डेफिनेट स्टेटमेंट देखिए, किसी ने हमें कहा, क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद है तो इस पे हम नहीं लगाएंगे. किसने कहा राम्स ऑन हॉलीडे, हमने क्या कहा ऐसी. तो अगेन इट्स अ शॉर्ट यस नो टाइप क्वेश्चन, तो इस पे क्या लग जाएगी, फॉलिंग टोन लग जाएगी. सो दीज आर द रूल्स ऑफ फॉलिंग टोन, एंड आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. रियल लाइफ में ध्यान रखना कि जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो या आप कंप्लीट एंड डेफिनेट स्टेटमेंट बोलते हो, आप ऑर्डर देते हो, आप स्ट्रॉन्ग एक्सक्लेमेशन करते हो, शॉर्ट यस नो टाइप क्वेश्चन यूज करते हो, या फिर आप मेन क्लोज बोलते हो, तो आपने फॉलिंग टोन के साथ बोलना है. सो if you like this lecture, don't forget to share this lecture with your friends. And for more videos, download my app Oxbridge English from Play Store, and the link of this app is given in the description box. Thanks for watching the video.